तो अभी वॉक करने निकला हूँ. अब लेट्स डू दिस राइट नाउ. वॉक भी हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगा. See now, this is extremely deep for me. It's very personal. More than anything, I have forced this part of me very deep down somewhere. Like बहुत ही ज़्यादा I've pushed this far beneath me now, and I just think that, but I think that you were able to get over your trauma for me. You were willing to talk about your problems, your past with me. So I need to be 100% honest with you too. I can't say all of the details, but I'll try and at least remember most of them. Because हाँ बस और क्या ही बोलूँ मैं. I'll try to give you the best, most accurate details I can. So let's start. Let's go back 2 years. And 2 years ago, I was in the 10th grade. Take this around January. I was seeing a bunch of like these couple reels and stuff. A lot of these romantic posts, couple YouTubers, and I started I started feeling like I wanted it too. Like किसको नहीं लगता है. आई थिंक ना, आई फील लाइक सबने एक बार तो देख के बोला ही होगा कि यार ये तो चाहिए. सो मैं निकल पड़ा. आई ट्राइड फाइंडिंग इट. आई फाउंड दिस app called Wink, which was essentially a dating app for teenagers. It still technically exists by the name of Soda now. And whatever. Sorry, this is just a very rough topic to talk about. Only a few people know about the full details of this. One is my buddy Arnav. He was with me throughout this entire ordeal. He was the branch of support for me, genuinely. He probably was responsible for saving my life too. Bhai, he was there for me. भाई बहुत भाई, अगर वो ना होता ना तो मैं पागल हो जाता अभी भाई. genuinely he kept me sane भाई. And okay, and a couple others. But Shivam technically knows some of the details, but he doesn't fully understand everything. I never gave him all the details. He's not a romantical person. Doesn't understand romance. So I thought it was not good for me to include him because he doesn't understand anything. Therefore, I didn't want him to get confused regarding this. So he knows some things, but he doesn't know everything by any means. And Surya, he knows even less. He barely knows any of the details, but he just knows whatever happened was very bad. That's all he knows. But at least most of what he knows. In general, that's the only thing he has on his list for that. He just knows whatever happened to me was very bad. Anyways, sorry. Let's go back. This is the entire history of my date. This is my entire dating history. This includes situationships, relationships, every girl I had a genuine care about. I'll say it all today. It might even feel good, therapeutic. भाई वाह देख कितनी pretty है. Anyways, January, I installed this app called Wink, started adding some people, eventually found a person called Mia Rudy Grace. She lived in Australia. We were talking, and then we decided to shift the apps from Wink to Discord. And we switched it, and eventually 2-3 weeks later, February 12th or some 18th or 19th, she said that she liked me
And to be honest, I was waiting for her to say it because I didn't have the balls to say it. I was trying to find the balls to say it, but I didn't have it. And thankfully, she ended up saying it to me before I had to. And yeah, so I just said, yes, I also like you. I said, as what? I said, depending on you. And she said, yeah, I like you more as a friend. And I said, yeah, I also like you more as a friend. But भाई उसने मेरे को बोल तो दिया था, but she didn't treat me like a boyfriend at all यार. No, I love you, nothing romantical कभी भी. Upon that, she was a heavy drinker, smoker, everything. And I just kept on trying to give her therapy. I mean, we were both kind of, broken in that time. I was in my depressive stage, and she was also, at least shortly after I got into a relationship with her, it also started for her. And I guess we were just there for each other to give each other help, trauma help or something. It was a trauma bond from what I would say. But she was my first, and I gave everything for her, anything. At that time, 2 years ago, if you would ask Akshat what he would not do for Mia, it would be nothing. I was willing to give my life for her. And the worst part is, I kept on, like, the first time you ever say a man or a woman that I love you, it is when it's true, na? It's not easy, na? It's not easy to say your first ever I love you, but I did it. I brought the courage and I said it to her, and she didn't even say it back. She just said, okay, thank you, or something like that. Not even a thank you, I think she just said okay. And that crushed my heart. And she never said I love you. She never. I wrote her poems, romantic poems about how much I liked her, how much she meant to me, what I would do for her. Never ever ever one respond. Never ever ever one positive thing. It was always an okay, alright, okay. She treated me horribly. I felt very used and abused, but I cared about her more than anything, and I wanted to be there for her regardless. I wanted to change her, I wanted to help her, I wanted to be there for her in any way I could be. And then eventually she passed out one day from getting drunk, and I meet some girl called Amy, gets on the phone and talks to me. By the way, these are important characters to the story. Okay, Amy, and she was sweet to talk to. She was nice. And then after one day, she went away. Also, she was in Australia. The time difference was also there, na. So she eventually went to sleep. Next morning, hey, I was obviously worried. My girlfriend blacked out from drinking. I was obviously going to be concerned. I asked, and then some of her friend picked up. This, by the way, I later found out that this friend's name was Clara. Now I'm saying, Clara, is Mia okay? Is everything okay? Please take care of her and stuff like that. And then, I don't know what happened, but she essentially just said that you're being very clingy and stuff, and I'm like, yeah, but she's my girlfriend, dude, and I'll obviously ask for details and stuff. What happened? How could you let this happen and stuff? And she basically just started saying that apologize or get blocked. And I just said, apologize for what? I didn't do anything wrong. I mean, whatever I'm doing is completely reasonable. At least tell me what I'm apologizing for. I don't apologize for things that I obviously do not understand. You don't just bend down to people's will like that. You need to understand why you're saying sorry before you just say sorry. And I was stubborn, and she just said that I'm blocking you then.
And at this point, she hasn't even sent me a voice message. I have no evidence of she's real. She only sent me one photo, couple photos. That's it. वैसे फोटोज़ मामले में उसने भाई मेरे को आज कभी नहीं भेजा कुछ भी. Never any photos, कुछ भी नहीं. Never a voice message, never a video call, never a phone call, कुछ भी नहीं. And then and then basically she just got on the phone and she said, you know what, she got to the next, she just said last week, you know, Mia came back and now she's saying, you know what, it was never meant to be, it's best you separate here. It was nice while it lasted though. And bhai, I'm like trying to convince her. I like in the last message I'm like just like, but why, what? And before I could even say anything else, Claire took the phone back and she blocked me. Now imagine getting blocked like that after everything you've done, being treated like that, and still getting blocked by somebody you cared about, and they didn't even seem to give a shit about you. It's like as if they just moved on like in a snap. Like as if, like, bhai, obviously I was completely crushed. I was soul crushed, obviously. This brings back some really nasty memories. Anyways, and let's just say I cried myself to sleep for like 20 days. I just kept on repeating that why out of everything, why this, why like this, man. I did everything in my power. There's nothing I didn't do. Why? I just kept on asking myself that why. Just if there was any good reason I would have understood why like this, man. And 20 days later, apparently some friend unblocked me, and then we started talking again. And apparently this whore did not have the chance to unblock me for 20 days. She apparently planned to, but she's been drinking all these 20 days. And भाई now you might think भाई I चूतिया हूँ मैं, but भाई हाँ उस समय पे मैं था. I would have done anything for her. I've told you. So I hope you understand. But yeah, I eventually ended up accepting her. And I'm the one who asked her that, like, does she want to resume the relationship? And she said, yeah, sure, whatever. Sure, whatever. Like, what the fuck? But I just took that as a yes and I was happy with it. And we are in a relationship where I was doing everything and she did not even have the patience to talk to me. Not a single heart emoji this woman has told me without it being sarcastic or insulting in some way. Not a single anything. Not even I love you, bro. You know, the only time I got an I love you message was only one time in a relationship of around 6 months. One time she told me I love you too when the relationship lasted 6 months. Like, भाई नहीं रहना था तो बता देते यार. Why do you have to drag me along, man? भाई थोड़ा सा दुखी होगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट भाई मैं छूट जाऊंगा, कोई नहीं भाई. Whatever. And you know when that day was? It was March 18th, 8 p.m. when she said I love you too. And even then she was drunk. Even then she was drunk when she said this. That stung in particular. When you say I love you, you expect it back, no? I didn't get it back. I never got it back. Except that one day in March. Never got an I love you back. Never got any response. No romance. No assurance. Nothing. Just me putting in countless efforts every day, every night, waking up
early to get her timeline so that I'm able to talk to her, and she doesn't even have the patience to talk to me. वो बात तक करने के लिए रेडी नहीं है भाई मुझसे. ऐसा लग भी रहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है. शी इज़ जस्ट लाइक भाई वो गोस्ट करके चले जाती है एक हफ्ते के लिए. एंड हाँ, एक मिनट आंटी को निकालने दो. भाई गोश्त करके चले जाती है. मैं भाई चिंता खाता रहता हूँ कि भाई कुछ हो गया हो, कुछ ना हो गया हो. जब अचानक से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, मेरे को टेंशन जाती है. भाई मैं ओवर थिंक करता हूँ बहुत ज़्यादा. भाई मैं करता हूँ, ठीक है. एंड थैंकफुली अर्नव वाज विथ मी ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड भाई वो मेरे साथ था, वो भी मैसेज कर रहा था. भाई सिर्फ मैं ही जानता हूँ मैंने कितने आंसू बहाए थे, या फिर अर्नव भी नहीं जानता है यार. बट उसको ये पता है कि भाई जो भी हुआ मेरे साथ वो बहुत ख़राब था. एंड ही नोज़ दैट. बट उसको भी इतना ही पता है. उसको ये नहीं पता हाउ मेनी टीयर्स आई शेड फॉर दिस होर. एंड हाँ, इवेंचुअली लाइक ना मेरा 6 महीने तक आते आते ना उसने मेरा दम तोड़ दिया था भाई. मैं अगस्त के आते आते उसने भाई मेरा दम तोड़ दिया था पूरी तरीके से. मैं टूट चुका था भाई. मेरे अंदर क्षमता नहीं थी अब. तो फाइनली अ बिट टू लेट. बट मैंने उस समय पे बोल दिया भाई उससे कि यू नो व्हाट, आई थिंक वी शुड ब्रेक अप. एंड उसने बस बोला ओके श्योर व्हाटएवर, ऐसे सही. लाइक इट्स लाइक एज इफ आई डिडंट इवन माइल्डली अफेक्ट हर वर्ल्ड. जो मेरे को लग रहा था भाई. बिकॉज ओके एक सेकंड, जस्ट वन मोर साइड ट्रैक. ये किया ना, ये इवेंट हुआ था जिसके अंदर ना मेरी मम्मी ने फ़ोन ले लिया था. ये 10th में था तो बोर्ड साल था, तो मैंने फ़ोन ले लिया था मेरा. तो ना मैंने एक इमोशनल मैसेज लिखा कि देख आई कांट बी ऑनलाइन फॉर अ वाइल. इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे और वेट फॉर मी, I won't blame you if you were to move on and get a different boyfriend. I won't blame you. Just live your life happily. मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा. एंड देन फिर लाइक उसके ना जो फ्रेंड्स थे वो मैं तेरे को बात बताऊँगा कि ये किया मैंने. इट वाज वो मेरे को ना वो रैंडमली उसके फ़ोन पे मैसेज करना शुरू कर देते थे. सो फिर क्लारा बोलती कि भाई क्या हुआ. एंड भाई थैंकफुली मैंने मम्मी को समझाया उस समय पे कि ना कि वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, ऑस्ट्रेलियन है, मेरे को टेंशन रहती है मम्मा. तो उन्होंने मेरे को डिसाइड किया कि मैं एक दिन में तुम्हारे को 1 घंटा 2 घंटा दे दूँगी, उसके साथ स्केड्यूल कर लो, मैं करवा दूँगी. थैंकफुली मेरी मम्मी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इन मामलों में, थैंकफुली. एंड भाई फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने स्केड्यूल किया. Guess कर क्या? What was the bare minimum to do in this situation? Oh, it would be to do what? To appear. It would be to come online and actually talk for somebody who has moved time for you. Obviously, na. That would be considered as the bare minimum, won't it? But भाई तब भी वो पार्टी कर रही थी. जिस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था उस समय पे भी वो दारू पी के पार्टी कर रखी थी. तब मेरे को पता चला कि वो मैं कितना डिसरिस्पेक्ट हो रहा हूँ. बट तब भी मैंने कुछ कट ऑफ नहीं कर रहा. बट उस समय पे ना मेरे को धीरे धीरे पता चल रहा था कि दिस वुमन कुडंट गिव अ फक लेस अबाउट मी. भाई मैं उसको जब भी डांटने की कोशिश करता ना तो भाई मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है कि भाई मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे दोस्त मेरे को हेल्प कर रहे हैं, सॉरी ये वो. या फिर मेरे भाई सॉरी भी नहीं बोलती थी वो आधे टाइम. सॉरी भी बहुत ही रेयरली आता था भाई. मेरे को ब्लेम करना शुरू कर देती थी या फिर भाई अपने सिचुएशन को ब्लेम करना शुरू कर देते. एंड शी इज़ जस्ट लाइक यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग. भाई हर बार यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग. एवरी टाइम ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स यूज्ड टू कीप ऑन टेलिंग मी भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड. माँ की चू तुम्हारे अंडरस्टैंड, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है. चूतियों, मेरी गलती नहीं है. बट मैं भाई 2 साल पुराने वाले दिमाग को कौन समझाए ये बात.
मैं तो भाई हो गया मैनिपुलेट। आई एम ईजी टू मैनिपुलेट एज मच एज आई नो साइकोलॉजी भाई। मेरे को भाई उल्लू बनाना आसान है। एंड दैट्स वाई यू विल रियलाइज लेटर इन द स्टोरी कि मेरा उल्लू इतने बार कैसे बन रखा है। बिकॉज मेरा आसान है भाई, मेरे को आसान है उल्लू बनाना। एंड वॉट एवर, अगस्त तक आते आते ना भाई मेरा दम टूट गया था भाई। उसने मेरा दम तोड़ दिया था भाई। 6 महीने एक बंदे के साथ तुम फुल 100% एफर्ट्स दे रहे हो और दूसरा वाला तुम्हारे तक बात करने के लिए तक रेडी नहीं रहता, तो भाई ऑब्वियसली तुम्हारे थोड़े टाइम बाद दम टूट ही जाता है। मैं तो भाई अपने आप को कोसता हूँ कि मैंने 6 महीने कैसे जी लिया। मैं अपने आप को अभी तक सोचता हूँ कि 6 महीने कैसे रह लिया ऐसे जगह पे। बट आई गेस लव इज़ रेजिलियंट। फिर ना मेरी एक उसकी दोस्त के साथ बात होनी शुरू हुई, एमी। एंड देन उससे हमारे अपना बातें शुरू हो गई। एंड आई रियलाइज आई लाइक हर बिकॉज भाई वो बहुत स्वीट थी। वो भाई दुनिया से तो बहुत ही ज़्यादा इमोशन दिखाती थी। शी वॉज मोर अंडरस्टैंडिंग। वो मेरे को भाई हेल्प भी करती थी, इमोशनल टॉक्स भी थी। एंड फिर 2 हफ्ते बाद अगस्त 14 को मैंने उसको प्रपोज दिया। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल आई टेक्निकली प्रपोज टू। एंड देन उसने ना एक्सेप्ट कर लिया इवेंचुअली क्या, मैंने फोर्स नहीं किया। वो बस सोने चली गई थी वो सोचने के लिए, क्योंकि वो पैनिक कर गई थी। एंड फिर उसने हाँ बोल दिया। एंड देन वो भी शुरू हो गया। काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ। हाँ, हम बात करते थे रोज़। एंड देन भाई फिर ना उसका बर्थडे आया, और उसका बर्थडे ना मेरे छोटे भाई का बर्थडे पे आता है 29 अगस्त। एंड भाई उस समय पे ना लाइक शी अपेरेंटली मी एंड ऑल द फ्रेंड्स who are going out for a trip. And then I find out about a different friend called Hannah. She also semi important. एंड भाई वो ना ट्रिप पे थे वगैरह वगैरह। और भाई ना लाइक मियाँ ने बोला कि भाई एमी क्यूट लग रही है, वैसे सो रही है भाई आराम से भी। एंड आई एम लाइक भाई प्लीज़ फ़ोटो भेज दे लाइक क्यूट तरीके से ना। आई एम नॉट बीइंग अ क्रीप भाई, मेरी बंदी का है, मैं क्या ही बोलूँ। क्रीप तो नहीं बन सकते हैं ना, आई डोंट थिंक इस मामले में। सो आई एम लाइक प्लीज़ भेज दे। एंड आई लाइक भाई मैंने लाइक थोड़ा सा प्लीड कर लिया। भाई उसको ना एक क्रीप लग गया। एंड उसने ना एमी को बता दिया। एंड आई एम लाइक भाई मैंने कुछ गलत थोड़ा ना करा है, मैंने तो बस भाई अपने गर्लफ्रेंड का ही तो फ़ोटो मांगा है यार, वैसे क्या मांग लिया मैंने भाई, किसी रैंडम का फ़ोटो थोड़ा ना मांगा है भाई। वो मेरे को जानती है, प्यार करती है, तभी तो मैंने मांगा है। तेरा नहीं मांगा इसलिए मैंने भाई, तू मुझसे तो नहीं करते प्यार बिल्कुल भी। मैंने मियाँ को बोला भाई ऑब्वियसली भाई इफ़ यू डोंट गिव अ शिट अबाउट मी तो मैंने किसी और से किया, और तेरे को इसमें भी दिक्कत हो रही है। बट शी रूइंड दैट रिलेशनशिप एसेंशियली बिकॉज एक सेकंड। सो हाँ, बट भाई फिर उसको भी क्रीपी लगा अपेरेंटली, आई डोंट नो, आई थिंक सो। मैंने उसको फिर सॉरी वॉरी सब कुछ बोला कि भाई सॉरी अगर तेरे को बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी, आई होप आई कैन मेक इट अप टू यू। बट देन ना उसने मेरे को बात करना बंद कर दिया 20 दिन तक। अपेरेंटली शी वाज जस्ट बिजी विद हर फैमिली एंड ऑल। बट भाई ये बताना भी चाहिए था ना। बट भाई देख, मैं ना आई वॉज लव स्टार्व्ड पूरी तरीके से। मेरे को भाई 6 महीने से तक आई लव यू नहीं मिला है, जबकि मैं पोएम्स लिख रहा हूँ भाई। पहली बार उसने मेरे को आई लव यू वो सब कुछ दिया, उसने मेरे को बोला। एंड ये सब हो रहा था। एंड भाई ना भाई 20 दिन के बाद ना मेरे को लाइक भाई मेरे को ना आदत हो गई थी गोस्ट होने की। तो मेरे को ना डर लग गया कि भाई वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। मैंने बहुत फकअप कर दिया उस वाले मामले में। एंड भाई फिर मेरा भाई ऑब्वियसली मैंने एक समय में पे एक बहुत ही रिग्रेटेबल चीज़ करी थी। मैंने ये अस्यूम कर लिया था कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, तो इससे पहले वो ऑफिशियली लेकर आया। मैंने सोचा कि बेटर ये रहेगा कि मैं कर दूँ, ताकि नॉट बिकॉज आई एम बीइंग टॉक्सिक और मेरे को पहले जीतना ये सब नहीं, बिकॉज भाई वो स्वीट सी लड़की थी एंड आई डोंट वांट टू पुट दैट टाइप ऑफ प्रेशर ऑन हर। शी डिज़र्व टू बी फ्री ऑफ माइंड। और भाई उस समय पे ना मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ की वैल्यू वगैरह सब कुछ बहुत डाउन था यार उस समय पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस समय पे आई वॉज सो नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट भाई। ईच डे आई वोक अप आई रिग्रेटेड वेकिंग अप। ईच डे आई टुक अ ब्रेथ आई विश्ड आई डिड नॉट।
भाई मैं इतने बार सोचता था कि मैं इनमें से एक बिल्डिंग से कूद जाऊंगा किसी दिन, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, गोली मार दूंगा, जहर पी के मर जाऊंगा। आई वॉज फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू डाई। भाई मेरे को ये अब ये तक मालूम है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पेनलेस मेथड टू डाई, और वो है कि नाइट्रोजन के बलून के अंदर अपना मुंह डाल दो ताकि नाइट्रोजन नॉक्स यू आउट एसेंशियली, एंड देन द नाइट्रोजन विल सफोकेट यू धीरे धीरे बिना किसी प्रॉब्लम के। इट विल एंड तुम आपको कोई पेन नहीं फील होगा। भाई मेरे को ये अब ये सब मालूम है इस चीज़ की वजह से। एंड आई नो द मोस्ट पेनफुल वे टू डाई इज़ फायर। भाई बाकी हाँ व्हाटएवर छोड़ो। तो आई बस मेरा सेल्फ वर्थ इतना कम था, मैंने बस ये सोचा कि ना कि इट्स बेस्ट कि भाई वो मेरे साथ ना रहे। आई एम नॉट गुड फॉर हर एंड ऑल, यू नो। आई भाई मैं खुद को ही इतना मैंने उन्होंने मेरे को तो मैनिपुलेट किया ही था, गैस लाइट सब कुछ उन्होंने किया ही था, बट मैं खुद को भी कर रहा था साथ साथ। भाई मैन इन लव, एटलीस्ट मी इन लव एट दैट टाइम। आई वॉज सो इजी टू मैनिपुलेट। भाई मैं तो इतना आसान था मैनिपुलेट होना। भाई फिर मैंने बस बोल दिया कि वी आर प्रॉब्ली गोना ब्रेकअप, एंड हाँ देन फाइनली 1 महीने बाद हमारी बातें होती हैं, एंड शी मैसेज मी फर्स्ट, एंड देन भाई उसमें ना थोड़ा सा इमोशनलेस हो गया था, हमने बातें करी, एंड देन फिर ना अपेरेंटली शी वाज लाइक गिविंग सम मिक्स्ड सिग्नल्स दैट शी स्टिल लाइक्स मी एंड ऑल। एंड भाई फिर ना उसके फ्रेंड से बोला कि भाई शी ऑब्वियसली स्टिल लाइक्स यू एंड ऑल। तो हाँ तो I just kept on talking to her and all, and I eventually asked her that do you still like me, you don't want to make this work again, and she said I don't know. And then भाई at that point मेरे को लगा कि भाई ना नहीं भाई मिसरेड कर लिया इस सिग्नल को मैंने I've misread the signal, she doesn't want me, and ऐसा कुछ नहीं है। And then another girl enters the story called Raven. Now Raven is a new member of this friend group, and I'm like भाई how does मैं उससे बात करना शुरू करा, and I'm like भाई how is Amy looking and all, is she okay? And she's like भाई yeah but you dig her right? And I'm like हाँ kind of, and she said but she isn't looking for a relationship it seems. And I'm like you know what, that's fine, it's good for her, she deserves to be free from all of this, she deserves better, and she deserves better than me. So I also moved on, and then I started talking to Raven. Now I'll do another thing here that I regret now. I did some casual dating. I mean it's not like I didn't care about Raven, but I didn't like her as nearly as much as Amy and Mia. But I don't think none of them ever cared about me in a serious way either anyways. So I don't think I'm very guilty about that, but I do feel bad that I got into that relationship. And भाई सब कुछ ठीक चल रहा था फिर से, everything was going very nicely, आराम से चल रहा था सब कुछ, and then Christmas को Mia had to just come and bug in and ruin my life all over again. उसने ना ड्रामा शुरू कर दिया वो, क्योंकि वो साइकोपना, भाई साइको थी यार एक नंबर की, जेन्युइनली साइको थी। बस उसने साइकोपंथी शुरू कर दी अपनी बहन के लोड़ी ने, लाइक अजीब अजीब चीज़ें बोलना शुरू कर दी, एंड शी इज़ लाइक मैं ना ब्लॉक कर दूँगी तेरे को अगर तो बकचोदी करना बंद करेगा। और मैं बकचोदी क्या करता, मैं उसको कन्फ्रंट कर रहा था कि तो कितने बहन की लोड़ी है, एंड शी इज़ लाइक भाई इफ़ यू डोंट शट द फक अप राइट नाउ आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर पीपल। एंड देन आई एम लाइक यू नो व्हाट फाइन डू इट, एंड एट दैट पॉइंट ना आई हैड फेथ कि शायद रेवन नहीं करेगी भाई उसके बोलने पे, बट अपेरेंटली रेवन तो उधर थी ही नहीं, उसका फ़ोन वो अपने फ़ोन छोड़ के गई थी, और उसने सबके साथ मेरा लाइक रिश्ता काट दिया पूरी तरीके से। एंड हाँ एंड भाई उसके बाद भाई रेवन ने मेरे को ऐड किया ही नहीं वापस कभी भी, लाइक शी एडेड मी 1 month लेटर। पूरा रिलेशनशिप टूट गया, सब कुछ ख़राब हो गया, रेवन को खुद अपने कुछ डिप्रेशन में पड़ गई, एंड देन आई एम लाइक भाई क्या बकवास चल रहा है यार। एंड देन भाई मैंने लाइक देख आई डिड नॉट ब्रेक अप विद हर, बट आई वॉज बस भाई वो मेरे को रिस्पॉन्ड ही नहीं करी थी, शी नेवर रिस्पॉन्डेड भाई। फाइनली मैंने कैसे ना कैसे उसका स्नैप निकाला वापस, मैंने उसको फिर से ऐड किया, उसने मेरे को वापस ऐड कर दिया, बट भाई वो मेरे को 2 महीने में एक बार मैसेज कर रही थी भाई, 3 महीने में एक बार मैसेज कर रही थी,
भाई it was so suffocating कि भाई मेरे को लगा ना कि I shouldn't give up on somebody ना. I felt like भाई मैं ऐसा सहारा बनूंगा, अगर मैं मिया का सहारा बन पाया, मैं एमी का सहारा बन पाया, तो why can't I do this for her भाई? She deserves it. I have to be there for her. She's my girl. But भाई you can only help someone who wants to be helped. That is true with Mia. It's true with Raven. It's true with Amy. It's true with all of them. And she did not want to be helped by me. मैं कभी मैसेज नहीं किया. Never talked to me. Never did anything. Eventually आते आते मैंने खुद भी बोल दिया कि भाई you're not talking to me at all भाई, and it seems like you either have forgotten me or don't really care about me anymore. So yeah, I'm breaking up. उसका फिर वो एक महीने बाद सीन करती है एंड कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, छोड़ देती है. एंड आई एम लाइक, यू नो, दैट्स फॉर माई बेस्ट. एंड yes, the next now there's situationship starting. मैंने स्नैप पे कुछ रैंडम्स को ऐड करना शुरू कर दिए. Then I found this girl called Eva. She lives in India only. She lives next to me. I met her in real life also once. And भाई essentially ये थोड़ा सा डार्क है, but you are friends and all. उसका बंदा था 1 साल का. And she basically stopped talking to me for a while, and I'm like, you know, that's fine ना, ठीक है भाई, उसका बंदा भी है, वो भी क्या ही बोलेगा भाई, तू रैंडम से इतनी बात करती है, ठीक है, आई अंडरस्टूड. एंड देन ना मैंने उसको रैंडमली उसके एक स्नैप पे मैसेज करा कि भाई लुक्स लाइक यू हैड अ गुड पार्टी एंड ऑल. एंड शी इज़ लाइक, या द पार्टी आई गॉट रेप्ड एट. एंड आई एम लाइक, हाँ मजाक कर रही है. एंड शी इज़ लाइक, नहीं भाई सच है. एंड भाई मेरे समय पे पूरा दिल टूट गया कि भाई क्या हो गया. एंड अपेरेंटली शी टोल्ड मी द स्टोरी कि भाई इसका किया गया था. एंड भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट भाई मैं कुछ नहीं कर पाया उसको भाई. बट मैं क्या ही कर पा सकता था? आई कैन गिव हर थेरेपी, आई कैन बी देयर फॉर हर. आफ्टर ऑल मेरे को साइकोलॉजिस्ट बनना था ना उस समय पे, एंड आई स्टिल वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट. सो हाँ भाई, मेरा काम ही यही था, अगेन गिविंग थेरेपी. But I hope you know, at this point I'm not just giving therapy to her only though. I'm giving therapy to my other couple friends also, because उनका भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चल रही हैं. So I was getting very overwhelmed now. ठीक है. But still, I did it because why, she deserved it. She was a good person, and that was completely unacceptable. And I tried to be there for her, the nightmares she was having and everything. I tried my best, whatever I could. And then I added this girl called Vanshika. She's important to this story. And Vanshika was very nice to me. She was gold. She was very sweet, kind, understanding, helping, सब कुछ. Me in a female's body essentially. And भाई मैंने उससे बातें करना शुरू करा, और मैंने ना इवेंचुअली किसी उसका जो रेप वाला सिचुएशन था, मैंने गलती से लाइक वंशिका को स्ट्रेस के अंदर बता दिया. भाई नाउ आई अंडरस्टैंड इट वाज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी टू से. इट वाज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड आई शुड नॉट हैव डन व्हाट आई डिड. बट भाई उस समय पे ना आई वाज सो स्ट्रेस्ड भाई, मेरे को ऑलरेडी इतने सारी चीज़ें संभालनी थी, एंड आई जस्ट नीडेड समवेयर दैट आई कुड ऑल्सो वेंट. एंड वंशिका वाज दैट फॉर मी. She was there for me. She was always standing for me. So मैंने I made a mistake. मैंने बोल दिया उसको. And then but भाई I didn't hide it from Eva. I told her भाई कि मैंने इस एक बंदी को बता दिया, I'm sorry. And and she was like, भाई तूने betray कर दिया ये सब. So I'm like, भाई I just hope you can forgive me. मैंने जो किया बस स्ट्रेस के अंदर किया. I'm really sorry and all. And she eventually, I guess, let it go. And I still kept on being there for her. I still kept on talking to her. And then one day everything just went to shit. She started like just going completely ballistic on random stuff. I think she was feeling angry at something. It was over a poem. She was like, the thing is, the rape was not what got to her really. That she was able to get over pretty well, I would say. At least I think the thing that was mainly getting to her head was that her asshole boyfriend of 1 year, who promised that in spite of the rape he will be there for her, he let her go. He gave up on her. Bhai,
you know how soul crushing that is. भाई तेरा ऑलरेडी ये हो गया है, और ऊपर से भाई तेरा जो एक ही सहारा था, तेरा 1 साल से जो तेरे साथ है, तेरा सब कुछ भाई, ही लेट्स यू गो। वो तेरे से ब्रेकअप कर देता है ऐसे मोमेंट पे। भाई क्या बकवास था भाई। एंड भाई आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक हर फील बेटर, एंड भाई उसने मुझसे कुछ चीज़ें करवाए थे, एंड आई एम जस्ट लाइक, you know what, I just did it because she is a heartbroken person. भाई चीज़ें I mean भाई उसको स्टॉक वॉक करना, ये सब उसे बात करना हो भाई, she was just begging that भाई मुझसे एक बार बात कर लो प्लीज़, एक बार बात कर लो प्लीज़। एंड आई was just trying to convince that dude कि भाई बात कर ले यार भाई, she is obviously going through a lot and stuff, एंड आई ट्राइड बीइंग रीजनेबल विथ हिम, बट भाई उसने मेरा मैसेजेस के ऊपर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया इवेंचुअली जाके, जब उसकी हिपोक्रेसी वगैरह सब कुछ निकल गया कि वो भाई बस बकवास कर रहा था कि आई विल स्टे देयर फॉर यू एंड ऑल। उसने बस बकवास किया था, झूठ बोला था, ही कांट डू दिस। उसने बोल दिया कि आई कांट डू दिस यार, सॉरी, आई थॉट आई कुड, आई कांट। भाई क्या बकवास था, क्या बकवास लॉजिक। भाई मैं बैठा हूँ उसके साथ पूरी रात भर, जब उसको नाइटमेयर्स आ रहे थे, जब उसको सब कुछ आ रहा था, when she was feeling alone, violated and everything, I was there to calm her down. I was trying my best. And भाई हम ना बस ये कंपेयर कर रहे थे कि हमने अपने प्रीवियस पार्टनर्स के लिए क्या क्या कर रखा है। हमने बोलते थे भाई हमने पोएम्स लिखे, सब कुछ किया। She was also like me in that sense कि वो भी बहुत रोमांटिकल थी। एंड इवेंचुअली ना हमारे उसके ऊपर कहीं लड़ाई हो गई। इट्स वेरी वियर्ड, मैं याद भी नहीं करता ठीक से, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट इट एनी मोर, बट हाँ। एंड देन शी शायद सेइंग कि भाई तूने वंशिका को इसे बता दिया, एंड आई एम लाइक भाई उसकी बात तो कब की है यार, तू कहाँ की बात कर रही है। एंड शी जस्ट लाइक हाँ यही कर था ना तूने, ये सब भाई। फिर ना मैंने उसको एक पॉइंट पे अपना अकाउंट का ये सब लॉगिन इन्फॉर्मेशन दिया था, सो शी कुड स्टॉक लक्ष्य, उसने मेरे से मांगा था। एंड आई गेव इट टू हर थिंकिंग दैट भाई वो किसी और के अकाउंट से अच्छा तो मेरे अकाउंट से कर ले, कि भाई मैं तो ध्यान रखूँगा ना कि ये कुछ कर नहीं रही, मैं कमेंट नहीं मार रही, मैं तो ध्यान रख लूँगा ना। बस उसने उस चीज़ को मिसयूज़ कर लिया, उसने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, और फिर वंशिका से मेरी बुराई करना शुरू कर दिया, मेरे बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। एंड भाई देन आई अंडरस्टूड ना दैट दिस वाज वे टू मच। भाई मैंने उधर ही अपना अकाउंट पास चेंज करा, उसको स्नैपचैट पे बोला कि भाई वो सच साइको, एंड शी इज़ लाइक अच्छा आई एम अ साइको, एंड उसने मेरे को ब्लेम कर दिया कुछ किसी बात पे। मैंने रिपोर्ट मार दिया उस अकाउंट को, मैंने उसकी इंस्टा आईडी को ब्लॉक कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। भाई पागल औरत। इवेंचुअली जाकर मैं उसको जब उसका कॉन्टैक्ट आया भाई, क्योंकि मेरे को ना आई वांटेड टू एटलीस्ट टेक केयर कि उसने अपने आप को सुसाइड वगैरह ना कर लिया, क्योंकि तब वो भी सुसाइडल थी। एंड हाँ भाई देख, आई वट एवर आई एम, भाई मेरे को किसके साथ कितना भी बीफ हो, भाई मैं एक एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ वेलफेयर पर्सन। भाई मैं अपना ईगो स्वॉलो करके किसी का ध्यान ज़रूर रख सकता हूँ। एंड हाँ आई मैसेज हर बैक and I'm like, is everything okay now? Are you feeling better? And she's like, no, it doesn't get really better, but it's gotten a bit better. The nightmares have stopped at least. I still miss Laksha, I still miss him every day and everything, and I'm like, yeah, sorry for that and all. And then हमारे फिर से इस वाली बात पे लड़ाई होना शुरू हो गई। And then I realized now she didn't really care about what I did for her. एंड देन आई जस्ट वेंट ऑन अ रैंट भाई उसके ऊपर कि भाई मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ, भाई मैं भी ये सब कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ भाई ज़िंदगी में, मेरे खुद के भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे खुद के दोस्त के भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास अपना खुद के पास्ट एक्सेस वाले इश्यूज़ हैं। भाई तू मेरे पे कहाँ गुस्सा उतार रही है भाई, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ भाई, मैं भी जितना कर रहा हूँ मैं उतना कर रहा हूँ भाई। एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड एडमिटिंग दैट या शी वाज एट फॉल्ट एंड एवरीथिंग, बट भाई ना वो बस अपने आप को खुद ही गिल्ट कर रही थी। एंड देन आई रियलाइज ना कि आई कांट हेल्प हर। वो सिर्फ भाई उसको एक एक्चुअल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, नॉट अ मेक शिफ्ट साइकोलॉजिस्ट। शी नीड्स एन एक्चुअल साइकोलॉजिस्ट हु कैन हेल्प हर प्रॉपरली। एंड आई जस्ट टोल्ड दैट टू हर, आई एम लाइक भाई लुक, इट डजंट सीम लाइक आई कैन हेल्प यू नाउ, दिस इज लाइक यू नीड टू सी समवन मोर प्रोफेशनल। एंड हाँ
सच्ची बात तो यही थी भाई, इंस्टाग्राम ये भेजने नहीं देगा तो तेरे को किसी और मीडियम के थ्रू भेजना पड़ेगा आई गेस। बट हाँ, काफ़ी लंबी हो रही है। आई नो इट्स अ 40-minute स्टोरी अभी तक। सॉरी फॉर मेकिंग दिस लॉन्ग, बट आई जस्ट थॉट यू डिजर्व टू नो द फुल ट्रूथ। Then a girl called Kiana came along, another serious one. She was one of my family friends की बेटियाँ. She came on my brother's birthday and I just talked to her, made small talk. It seemed like she was okay to talking to me. And yeah, we just met along and हाँ, फिर उसने अपना ड्रामा पास्ट वगैरह सब कुछ बताया कि वो अपेरेंटली उसका बेस्ट फ्रेंड का जब वो 8 साल की थी तब उसका रेप होकर उसका मर्डर कर दिया गया था। एंड नाउ शी फाउंड सम रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल एंड शी ट्राइड टू गो टू द पुलिस एंड द पुलिस जस्ट इग्नोर्ड हर, व्हिच आई वाज ऑब्वियसली सिंपैथेटिक टू। भाई मेरा दिल टूटा इस बात से एंड आई ट्राइड टू बी देयर फॉर हर ऑल्सो नाउ। तो अब तो एक ट्रेंड नोटिस कर रही है कि भाई ना चूतिया हूँ मैं, जो भी लड़के को वल्नरेबल देखता हूँ मैं उसके लिए पूरा का पूरा हाई पड़ जाता हूँ मैं। मैं बस उसको हेल्प करने में लगा रह जाता हूँ। हाँ, दैट इज़ ट्रू। एंड देन आई फाइंड आउट ना भाई मेरा एक अपेरेंटली मेरा दोस्त उसका एक्स है। मेरा एक दोस्त है, नॉट द 3 मेन वंस। एक दूसरा दोस्त जिसके साथ मैं स्पार वगैरह करता हूँ, लड़ाई प्रैक्टिस, फाइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, वो उसका एक्स है। एंड अपेरेंटली दे रियली लाइक ईच अदर, बट उनके फैमिलीज वगैरह, उसकी फैमिली उसको पसंद नहीं करती है। एंड आई एम लाइक, यू नो व्हाट, लेट्स ट्राई एंड हेल्प हर, आई ट्राई एंड हेल्प हर। एंड वी डिड ट्राई एंड हेल्प हर। आई कॉल्ड दैट dude over, they talked, they made up for whatever that was। उन्होंने मेरे बच्चे से बातें वगैरह शुरू कर दी। एंड देन शी वाज लाइक ना, भैया आप प्लीज़ सपोर्ट कर लेना, आप ना, बस ने मेरे को भैया बुलाना शुरू कर दिया। एंड देन आई एम लाइक भैंचोद, भैया बन गए। बट आई एम लाइक, यू नो व्हाट, फक इट भाई, इफ़ आई केयर अबाउट इट डजंट मैटर वेदर आई एम डेटिंग हर और नॉट। भाई मैं अगर उसका भी भैया हूँ तो मैं भी भैया हूँ, बात सिंपल है। आई एम सपोज टू हेल्प हर, ये मेरा काम है भाई एक बड़ा भाई के नाते, एंड टू प्रोटेक्ट हर ऑल्सो। भाई इट इज़ माई जॉब नाउ, आई टेक माई रूल सीरियसली। सो भाई दिवाली के समय पे ये लोग मिल रहे थे, मैं कवर बन रहा था बस एक्सक्यूजेबल बनाने के लिए कि वो क्यों मिल रहे थे वगैरह वगैरह। एंड देन इवेंचुअली जाके उसकी मम्मी को पता चल गया समहाउ। एंड देन वो मेरे को बोल रही थी ना, आई शुड मेंशन किया ना रिसेंटली, लाइक उसको भाई वो बंदा लिटरली सब कुछ कर रहा था, ट्राई कर रहा था वो। एंड उसके पूरी फैमिली सब लोग प्रेशर कर रहे थे कि भाई उसको छोड़ दे। एंड आई एम लाइक, भाई क्या दिक्कत हो रही है सब लोगों को। टर्न्स आउट कि एक्चुअली दे वर राइट भाई, थोड़ा ना जो बंदा था वो काफ़ी चूतिया है। PDF फाइल तो है ही, अजीब से किंग्स हैं भाई, किंग्स आई मीन भाई वो लाइक उसको पसंद है कि भाई तुम क्लेचर लगाओ मुंह पे या फिर ऐसा कुछ। भाई अजीब सा इंसान है भाई, और भाई रंडी भी है थोड़ा सा। लाइक वो भाई आई थिंक उसके कियाना के लिए फीलिंग्स जेन्युइन थे, बट एटलीस्ट अब जाके तो बिगड़ गया पूरे तरीके से। पहले का नहीं पता बट अब पता है मेरे को कि अब तो पूरा बिगड़ चुका है। एनीवेज तो ना उसने ना कियाना ने उसको बुला के बोल दिया कि भाई मेरे सामने मेरे को भी बुलाया। एंड देन उसके सारे फ्रेंड्स दूसरे साइड पे थे, मैं प्रणव की साइड पे था। एंड देन उसने बोल दिया कि वी आर ब्रेकिंग अप एंड ऑल। एंड भाई फिर प्रणव के साथ लाइक थोड़ा आधा घंटा राउंड किया, मैं उससे बात करी, उसको समझाने की कोशिश किया कि भाई कोई ना छोड़, लीव इट भाई, शी इज़ अ हो व्हाटएवर। एंड देन आई रियलाइज ना उसके लाइक ऑलरेडी वो मेरे को रात को फ़ोन करके रोनी शुरू कर दी कि वो कैसा सा था भाई, आई लाइक हिम अ लॉट वगैरह है ना। लाइक सारी तूने ब्रेकअप किया है बहन की लौड़ी, तू चूतिया एक नंबर की पागल औरत। एंड देन फिर उसने ना पता नहीं ये अचानक से बोल दिया कि भाई सब लोग यही बोल रहे थे कि मैं तेरे को डेट कर रही हूँ एंड ऑल। एंड मैं भाई अब अजीब हो गया कि भाई पिछली बार मेरे को भैया बुला रही थी, अब ये क्या इम्प्लीकेशन बन रहा है। तो मेरे को ना स्केच फील हुआ अचानक से, भाई मेरे को बोल रही है अभी 2 मिनट पहले प्रणव के बारे में बोल रही थी, फिर शी इंट्रोड्यूस सम अदर राइटर कॉल्ड मेरा 3 साल सा जो क्रश है
she has a crush for another 3 years but she's in a relationship with other people. भाई मेरे को अब समझ में आ गया कि भाई ये बनती तो लॉयल है, शी सेज शी इज़ लॉयल बट शी इज़ सो नॉट लॉयल भाई, शी इज़ अ प्ले गर्ल, शी इज़ भाई इसका ईगो इज़ बिगर देन द साइज ऑफ टेक्सास, वो मैंने खुद देखा है, ईगो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जी, है ना। आपका ही मैसेज आया अभी, वही चेक कर रहा था। एनीवेज ईगो द साइज ऑफ टेक्सास भाई, सॉरी तक बोलने के लिए रेडी नहीं थी। एंड देन आई एम लाइक भाई फिर प्रणव ने ये मैसेज कर दिया ना, जस्ट बी बेटर फॉर द नेक्स्ट पर्सन। और उस समय पे मेरे प्रणव पे ना प्राउड फील हुआ कि भाई अच्छा लड़का है भाई, डिटर्मिन्ड लड़का है बट सिंपैथेटिक भी है। शायद उस समय पे वो ठीक था बट अब जाके बिगड़ गया है, आई डोंट नो एनी मोर। अभी भी मैं सुनता हूँ रहता हूँ कि जब भी लाइक मेरा दूसरा शिवम दोस्त है, वो भी प्रणव के साथ दोस्त है, तो जब भी ये दोनों एक दूसरे को देखते ना नीचे, प्रणव और कियाना, तो प्रणव लाइक कियाना के पीछे पीछे बातें वगैरह करना शुरू कर देता है और फिर भाग जाता है उसी के साथ। सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो भाई मैंने भी बात करना बंद कर दिया अचानक से भाई। एंड देन आई जस्ट फाउंड आउट ना कि शी वाज जस्ट यूजिंग मी थ्रू आउट द एंटायर थिंग। भाई जैसे वो सिचुएशन ख़त्म होना, उसने मेरे को मैसेज करना बंद कर दिया पूरी तरीके से। हाँ, जब भी मैं भाई मेरे को पता चल गया था कि भाई जब भी वो दिवाली के समय पे वो मिलते थे ना, लाइक भाई हम भी बात कर लेते हैं, पर अचानक से शी इज़ बिज़ी नाउ, एवरी टाइम अचानक से शी इज़ बिज़ी और शी नीड्स टू गो और वट। एंड भाई मेरे को पता चल गया आई वाज बीइंग यूज्ड, बट ये फाइनल नेल इन द कॉफिन था। फिर मैंने भी बोल दिया बाढ़ में जाओ बहन चो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। नाउ कम्स द डार्कर पीरियड। अभी तक सब कुछ हंसी मजाक थी भाई। हाँ, ये वंशिका लड़की भी जो थी, आई विल गिव यू कॉन्टेक्स्ट फॉर हर ऑल्सो। भाई मेरा इसका भी मन था डेट करना, बट लेट्स जस्ट से अ लॉट ऑफ भाई शी वाज नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन द वर्ल्ड, बट भाई यू नो आई डोंट केयर अबाउट दैट वेरी मच। इट वाज मोर लाइक शी वाज अ बिट कोल्ड एंड आई थॉट शी डिडंट लाइक मी एंड शी वुडंट से यस, सो क्यों ही बोलूँ मैं। I literally eventually found out that she was gold, bhaiya. That should have. You'll hear that part of the story. And now let's come to the December part. भाई मेरा ना एमी के ऊपर मेरे को लगा था कि भाई मैं कुछ गलत किया था उसके साथ। I kept on feeling guilty कि भाई I let her go so easily. ट्राई तक नहीं किया मैंने अपना खुद की गिल्ट की वजह से किसी और को सताया है। वो भी रोई होगी, वो भी भाई परेशान रही होगी शायद। भाई मैंने गलत किया जो भी किया भाई, मैं आई शुड नॉट हैव डन दैट। तो मैंने भाई फिर मिया को मैसेज किया। आई एम लाइक भाई भाई बाय द वे मेरी अभी तक मेरे को ना अब विन बैक करने की कोशिश कर रही है। अपेरेंटली उसको अब समझ में आ गया उसने क्या क्या गलती करी थी। वो मेरे को सॉरी बोल रही है भाई, वो बोल रही है कि भाई आई विल ट्राई माई बेस्ट नाउ वगैरह, रोना धोना भाई पूरा का पूरा चालू। भाई मैं बहुत इमोशनल हो गया था, तो मैंने इतना फॉरगिव भी कर दिया था। भाई पहला प्यार थोड़ा सा ऐसा रहता है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट अब तेरे को पता चलेगा व्हाई आई डोंट फील जैक शिट फॉर देम। बाय द वे इन दिस एंटायर Mia saga she has never sent me a single voice note, a single call or a single video call saying that they were not comfortable. Neither did Mia, neither did Amy, neither did Raven, neither did Hannah, nobody. They said that they're not comfortable, they need permission from the other for the videos and all of that and bullshit bhanchod, all kinds of bullshit, ठीक है। एंड भाई बकवास भी करते रहे कि भाई कंफर्टेबल नहीं है हमारे साथ, पहले गलत चीज़ें रखी हैं। एंड आई केप्ट ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ठीक है लड़कियाँ हैं भाई, आई कांट एक्सपेक्ट दैट मच, चल ठीक है छोड़। सो मैंने ना एमी को फिर से लाइक बोला कि आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड अ फ्यू इयर्स अगो, इट वाज नॉट राइट ऑफ मी, आई शुड हैव ट्राइड हार्डर, आई शुड हैव बीन देयर फॉर यू, आई शुड हैव ट्राइड। एंड शी वाज लाइक या इट्स आई एम सॉरी इफ़ आई डिड एनीथिंग ईदर। एंड भाई मैं अभी भी ये सोचा था कि भाई कितनी स्वीट है यार, अभी भी वो भी ऐसी सी थी। एंड देन हमारी फिर से बातें शुरू हो गई, देन फिर से हमारा भाई शुरू हो गया। एंड देन आई एम जस्ट लाइक भाई यार I guess what's meant to be happens either way। भाई यू नो मेरे 1 साल पुरानी एक्स मुझसे वापस करने वाली है। एंड देन ना भाई मियाँ पागल है यार, भाई उसको जेन्युइनली उसको साइक वार्ड के अंदर डाल दिया।
साइक वार्ड के अंदर, ठीक है। नाउ मैंने पूरा ऐसा रोमांटिक बबली बबली से फीलिंग्स, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन I na Google and upon the suggestion of someone, I Google and all of their photos. Only भाई सारे जो फोटोज़ उन्होंने भेजे आज तक मेरे को, सारे फोटोज़ they were all fake. Every single one of them except मिया के फ़ोटोज़ legit थे। बाकी every single one of the photos were fake, online, taken from other people. अब बुरा लग रहा है ना। हाँ भाई, they were never real, सारे नकली थे, कोई भी असली नहीं था। मे बी मियाँ थी, हो सकता है कि वो भी रियल हो सकता है भाई कि बस उन्होंने गलत फ़ोटोज़ भेजी हो, ये सब वो सब। भाई मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ जितना मैं चाहता हूँ, बट मैं ऑन एवरेज स्केल बोलूँगा दे आर अबाउट 60% फेक, 40% रियल, डिपेंडिंग। भाई रियल ना तुम जान सकते हो क्योंकि कुछ लोगों के कॉन्वर्जेसन से पता चल जाता है, बट आइदर दे प्रोफेशनल्स एट दिस और हाँ दे वर रियल टू सम एक्सटेंट एट लीस्ट। हो भी सकता है कि वो लॉन्डे थे भैंचो जिनके साथ में ये सब बकवास कर रहा था, which hurts more to think, but now I've moved on. बट भाई उस समय पे ना when I found out, मैंने उसको ना ये सब एविडेंस भेजा एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मियाँ की मेंटल हेल्थ की वजह से ये वो उसको सोशल मीडिया बैन हो गया है, सो एवरीबॉडी इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड। वाह क्या बात है। सब कुछ सारे अकाउंट उसने अपेरेंटली डिलीट कर दिए बिकॉज वो मैसेज के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ के मुताबिक उसके सोशल मीडिया को बंद करने का एडवाइस दिया था। अपेरेंटली शी डिडंट लेट गो ऑफ द स्टोरी इवन देन, सो मे बी हो भी सकता है कि असली हो, आई डोंट नो। बिकॉज भाई अगर समबडी इज बीन बस्टेड ऑलरेडी तो फिर भाई वो एडमिट ही कर देता है ना, वो क्यों इतना झूठ बोलेगा। तो हो सकता है कि मे बी दे रियल, बट नाउ आई डोंट गिव अ शिट। बट उस समय पे भाई इट वाज सोल क्रशिंग टू से मोर देन लीस्ट। भाई फॉर 21 days I cried every single day. I begged to God कि भाई bring her back, just make this make sense to me, do whatever. I just भाई तू जानती नहीं भाई उस समय पे I was in such a dark period. Suicidal नहीं था thankfully अभी भी, it was not nearly as dark as 2023 but it was pretty damn bad. बहुत ख़राब था भाई, मैं ही जानता हूँ मतलब। और मैं एग्ज़ाम भी देने की कोशिश कर रहा था इस समय पे, तो खुद ही जान सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। बट आई पुश थ्रू एंड देन मैंने ना किसी रैंडम को ऐड किया था जिसका नाम श्रेष्ठ था स्नैप पे, और ना शी गॉट वेरी फ्रेंडली विथ मी एंड शिट। शी इज़ लाइक ना वेरी फ्रेंडली एंड ऑल, एंड शी इज़ लाइक आर यू सिंगल, एंड आई सेड yeah I'm single, and she said yeah I'm also single. She said long term relationship, and I said yeah I also want to be in a long term relationship. और उसने ना मेरे को एक कुछ घंटों के अंदर कन्विंस कर दिया कि भाई डेट मी, एंड आई एम लाइक ओके भाई लेट्स सी। मैंने इतने सारे चूतियों को चांस दिया है, इसको भी ये देख के देते हैं। भाई हमने 3 दिन तक अच्छे बातें करी और भाई 3 दिन बाद उसने मेरे को गोश्त कर दिया। क्या बकचोदी हुई भाई मेरे साथ। आई डोंट वांट कंसीडर दिस टू बी अ रिलेशनशिप, बट भाई बस टू बी ऑनेस्ट विथ यू आई जस्ट नीडेड टू से दिस, बस मेरा उतना ही था भाई। उसने बेसिकली स्कैम ही हुआ है मेरे साथ आज तक, सारे रिलेशनशिप के नाम पे मेरे को स्कैम किया गया है, बस सिंपल बात तो यही बोलूँगा मैं। एंड देन मेरे वंशिका के साथ बातें शुरू हो गई थी बाय द इस पीरियड के अराउंड, सृष्टि के पहले। Actually when the Amy ghosted me situation happened, shortly after that Vanshika started messaging me again, and then हम बातें करना शुरू करे। एंड देन भाई मैंने जेन्युइनली सोचा ना कि मैं उसको डेट करना चाहता हूँ। शी इज़ वेरी नाइस यार भाई, जेन्युइनली शी वाज डायमंड भाई, बट नाउ अपेरेंटली शी वाज ऑलरेडी डेटिंग समबडी एल्स, an asshole who's 23 and she's 16, but she was obviously in love, so she let it go. And bhai he was a complete asshole bhai, complete asshole. Kept on saying she was ugly bhai, कैसे सी लग रही है भाई वगैरह, demeaning her, being a horrible piece of shit भाई। कभी असली ज़िंदगी में मिल जाएगा ना, मैं उसको एक गटर के अंदर डुबा के मारूंगा। जेन्युइनली इतना चूतिया इंसान मैं छूना भी नहीं चाहूँगा, इतना डिस्गस्टिंग इंसान जेन्युइनली। बट वंशिका was
in love, so I can't blame her. एंड इवेंचुअली जाते जाते ना आई सेड ना कि भाई या फिर तो वो बचेगा या फिर मैं लड़ूंगा तेरे लिए, और अगर भाई या फिर तो मैं जाऊंगा या फिर वो, नॉट इन वो वैसे टाइप का सेंस कि भाई अल्टीमेटम वगैरह, बट ये था कि भाई मैं तेरे को याद दिलाता रहूँगा कि तेरे को इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहिए, कितना चूतिया इंसान है, तू क्यों रह रही है इसके साथ. एंड देन ना उसने बस यही बोलना शुरू कर दिया, यू नो आई विल रन अवे फ्रॉम ऑल दिस, आई सेंड दैट मैसेज इफ़ यू वांट, वंशिका का लास्ट मैसेज. And then she chose her boyfriend over me, which I don't blame her for. I mean, any good person in a relationship, I would expect her to do that, na. I don't blame her. She's probably the only past relationship I have, in some sense. Like, she's not a real relationship, she was more of a situationship always. But I even told her, you know, in the last coming days of our friendship, कि I wish I would have dated you last year. I wish I was not so judgmental. Not judgmental. I wish I had judged differently 1 year ago. If I had judged things differently 1 year ago and I would have proposed to you, bhai, she would have said yes now. Now she's telling me that apparently she would have said yes and everything would have been fine. एंड भाई उस समय पे लाइक मेरा ना दिल टूट गया कि उस समय पे कि भाई मैंने एक रॉन्ग जजमेंट के बेसिस पे, भाई अब उसकी भी ज़िंदगी नर्क है, मेरी भी ज़िंदगी नर्क है, क्योंकि भाई मेरे पास भी अब कोई नहीं है, मेरे को भी सभी बिट्रे करके चले गए. एंड इट कुड हैव ऑल बीन सॉर्टेड अगर मैंने उसको प्रपोज किया होता. एंड हाँ, इवेंचुअली जाते जाते शी हाँ हो गया था. आई रिमेंबर इट, 21st April हुआ था ये. 21st April को आते आते आई वॉज ब्लॉक्ड एंड शी अगेन रोट मी अ वेरी नाइस लॉन्ग मैसेज, जिसको मैं कभी कभार पढ़ता हूँ अभी भी, बट हाँ, नाउ आई डोंट एज मच एज आई यूज्ड टू. एंड हाँ, दैट्स द स्टोरी. नाउ हाँ, बस ये इतना ही था.